નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત 18 લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। ભગવાન મહાવીરના નિર્માણના 2550 વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સ યોજાઈ, જેમાં વડોદરાના જૈન અગ્રણી દીપક શાહે ધર્મ પરિષદને સંબોધિત કર્યું। ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ઓફ રિલિજન્સ ફોર પીસના સંજીવ જૈન તથા ટેમ્પલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનના A.K. મર્ચન્ટે સંકલન કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમ દિલ્હીમાં C.D. દેશમુખ મેમોરિયલ ઓડિટોરિયમ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં જૈન આચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સુરી મહારાજે પ્રસ્તાવના કરી હતી। આ કાર્યક્રમમાં વડોદરામાંથી યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સદસ્ય દીપક શાહ ભગવાન મહાવીરે બતાવેલા સિદ્ધાંતોને જો જીવનમાં ઉતારવામાં આવે તો બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય તેમ જણાવ્યું હતું। દીપક શાહે સંબોધન પહેલા રવિન્દ્ર જૈનના ગીતની પંક્તિ ગાતા જણાવ્યું કે हिंसा पीड़ित इस विश्व को महावीर पंथ पर जाना पड़ेगा, इसलिए वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है गाયું હતું। આ ધર્મ સભામાં બિશપ ફાધર અનિલ જોસેફ થોમસે કપાળ પર તિલક લગાવી આ દેશની પરંપરા છે તેમ જણાવ્યું હતું। દરમિયાનમાં વીપી સિંહ અને વાજપેયી સરકારના પૂર્વ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી સોમપાલ શાસ્ત્રી આર્ય સમાજ તરફે વિચાર રજૂ કર્યા હતા। શાહી ઇમામ ડૉક્ટર મુફ્તી મુકરમ અહેમદ મુસ્લિમ સમુદાયના નાદુરસ્ત તબિયત હોવાના કારણે આવી શક્યા તેમ ન હતા। તેમનો તથા પારસી ડૉક્ટર કામાનો સંદેશ પ્રોજેક્ટર સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવ્યો હતો। સ્વામી સર્વલોકાનંદજી રામકૃષ્ણ મિશનમાંથી પધારી મહાવીરના સંદેશો અને સિદ્ધાંતોની હાલમાં પણ એટલી જ જરૂરિયાત છે તેમ જણાવ્યું હતું। ઇઝરાયલના રૂબબી ઇજેકીલીએ યહૂદી ધર્મ પણ મહાવીરના વિચારોથી ખૂબ પ્રભાવિત છે તેમ જણાવ્યું હતું તથા ઉર્મિલ દીદી બ્રહ્મકુમારીમાંથી પધારી મહાવીરની મેડિટેશન પદ્ધતિથી કેવા લાભ થાય છે એનું પ્રેક્ટિકલ કરી બતાવ્યું હતું તથા એપીજે અબ્દુલ કલામ એવોર્ડ વિજેતા સૂફી રાજ જૈને જગતમાંથી ક્લાઇમેટ ચેન્જની ખરાબ અસરો દૂર કરવા મહાવીરના સિદ્ધાંતો કેવી રીતે કામ કરશે તે જણાવ્યું હતું। દરમિયાનમાં MS યુનિવર્સિટીના વડોદરાના પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર તથા અત્યારે દિલ્હી ફાર્માસ્યુટિકલ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડૉક્ટર રમેશ ગોયલ સાહેબે જણાવ્યું કે ભગવાન મહાવીરના સિદ્ધાંતો પર સંશોધન કરીને નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું છે। ડૉક્ટર ધરમચંદ જૈન તીર્થંકર મહાવીર યુનિવર્સિટીમાંથી પધારી વર્તમાન સમયમાં ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશોની શું ઉપયોગિતા છે તે વિષય ઉપર વક્તવ્ય આપ્યું હતું એમ જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું। आज C.D. देशमुख मेमोरियल में सर्वधर्म संगोष्ठी यानी कि नेशनल राष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद का आयोजन किया गया था। कॉन्फ्रेंस का दिल्ली यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश गोयल हमारे साथ है। वो बड़ौदा में भी MS यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे। सर, आज के कार्यक्रम में आया भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया उसको आप क्या समझते हो, किस प्रकार से आप बोलना चाहोगे? वो पूरे संसार का संसार में शांति ला सकते हैं, क्योंकि वो अशांति वो अहिंसा के पहला उपयोग उनका उपदेश यही है, अहिंसा। उसके अलावा त्याग जो इसमें धर्म में दिया गया है वो भी है, आचरण वो भी जिसे बताया गया है वो बहुत क्लियर है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे जानने को मिला है एजुकेशन वो है कि इसके अंदर बहुत गहराई की विज्ञान छिपी है और वो ऐसे मोती हैं जो हमारे पूरे देश में अलग ढंग से एक पूरी समृद्धि ला सकते हैं और ये ज्ञान और विज्ञान का संगम है, ऐसा मेरा मानना है। और जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। बस। जय किशन जी। इस राष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद में सिख समाज से जय किशन सिंह जी पधारे हैं, जो बंगला साहब में भी रहते हैं। वो अक्सर कनाडा US में बहुत अपना निवास करते हैं। आज भगवान महावीर की उपयोगिता के बारे में उन्होंने जो उद्बोधन दिया, आप कैसे भगवान महावीर के जो प्रीचिस थे, उपदेश थे, वो वर्तमान समय में कितने उपयोगी है, आप क्या कहोगे? तो
तो आज मेरे को यहाँ बुलाया गया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो जो मैंने जैन धर्म के बारे में यहाँ आके जाना, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं सिख धर्म को बिलोंग करता हूँ, उसमें जो पढ़ता हूँ, तो जो हमें हमारे गुरुओं ने बताया वही ही स्वामी महावीर जी ने सभी को समझाया, जैसे कि सच पे चलना। तो गुरु नानक पातशाह जी भी यही कहते हैं कि सच पे चलो, और उन्होंने कहा कि किसी को दुख मत पहुंचाओ। ऐसे ही गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई, कि सभी से मित्रता रखो, सभी को मान सत्कार दो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तो मेरे को जो जैन समाज की ये जो महावीर जी की शिक्षाएं थी वो सिमिलर लगी काफ़ी। उन्होंने काफ़ी मानवता का सुधार करने के लिए, संसार में शांति लाने के लिए बहुत प्रयास किए, जो कि उनके लिए बहुत, जैन समाज के लिए भी बहुत असरदार है। सो इतना कहते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था सर्वधर्म का, उसमें सूफी संत राज जैन जी होशियारपुर से पधारे थे, और उन्होंने भी भगवान महावीर के जो उपदेश है वो वर्तमान में कैसे प्रस्तुत है उनके बारे में बताया। हम उनसे ही जानेंगे कि भगवान महावीर की जो प्रीचिंग है वो आज के समय में कितनी स्तुत है। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी की जितनी भी टीचिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रैक्टिकली आज हम लोग अपने ऊपर निभा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बड़ा सुंदर और सक्षम बना सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी एक टीचिंग है वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद में हम खुद को बेहतर कहना और दूसरे को गलत कहना, उस चीज़ से पार हो जाते हैं। हम भी सही, आप भी सही, मगर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो गलत है या हम लोग अपने आप को सही कहने के लिए दूसरे को ये छोटा कर रहे हैं या दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते। इसी टीचिंग को बेसिकली लेकर अगर आज हम चलें तो पूरे विश्व में मैं कहता हूँ कि आतंकवाद, नस्लवाद, जितने भी उग्रवाद हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। आज हमारे राष्ट्र को गुरु महावीर स्वामी जी की इस अनेकांतवाद का जो शिक्षा है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, उसमें रामकृष्ण मिशन से हमारे साथ स्वामी सर्वलोकानंद जी है, जिन्होंने अपने विचार भगवान महावीर की उपदेशों की क्या उपयोगिता है उसके ऊपर दिए। अब इसमें प्रकाश डालिए। आज के दिन में भगवान महावीर जी का जो उपदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी बहुत है। आज का जो माहौल है, जो माहौल से हम भयभीत हैं, माहौल से हम आतंकित हैं, माहौल से हम चंचल हैं, अस्थिर हैं, इसलिए भगवान महावीर जी ने जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्तेय, समता के बारे में जो कहा है उन्हें हमें आत्मसात करना है। चर्चा तो हम करते हैं, बहुत सारे इंटरफेथ, पार्लियामेंट्री रिलीजन्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से काम नहीं होगा। उनकी जो वाणी है, महापुरुषों की जो वाणी है, खास करके आज के दिन महावीर भगवान का जो वाणी है, शिक्षा है, उसको हमें आत्मसात करना है, तभी हम सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो केवल कागज में ही रह जाएगा और काम का काम कुछ नहीं होगा। तो आइए हम सब उनकी वाणी को जीवन में उतारें, आत्मसात करें। हमारे साथ फादर अनिल कुजो है, जो ईसाई धर्म से है। आज सर्वधर्म परिषद में यहाँ पे सिटी मेमोरियल IIC में जो आयोजित हुआ, उसमें उन्होंने अपने भगवान महावीर की जीवन के उपदेशों की उपयोगिता क्या है, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भगवान महावीर जी का जो संदेश है, जो उनके उपदेश है,
वो बहुत ही उपयोगी हैं। आज के जो संदर्भ जो हमारा है हमेशा उपयोगी रहे, और विशेषकर आज, क्योंकि हमारे समाज में हम जानते हैं कितनी बुराइयां हैं, कितनी नफरत है, और हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, और मुल्कों में भी और मुल्कों के बीच। तो इसलिए जो संदेश उन्होंने दिया, त्याग का संदेश, वो नियंत्रण का संदेश, संयम का संदेश, और तपस्या का संदेश, और जो आज़ादी जो हमको चाहिए अंदर, और अपने आप को, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, इस पर दमन करना, और एक नया जीवन, स्वर्गीय जीवन, दिव्य जीवन जीना। तो ये जो है, जो हमको हमेशा बुलाता है कि हम नए व्यक्ति बन जाएं, वो बहुत ही उपयोगी है उनका संदेश। तो मैं कहता हूँ कि हमको इसके ऊपर और भी ध्यान करना चाहिए, और हमेशा इस तरह जो संगोष्ठी है, सर्वधर्म संगोष्ठी है, वो करनी चाहिए। हमने एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे की जो आध्यात्मिक धन दौलत है, इससे हमें बहुत ही फायदा लेना है। जी, हमारे साथ आज राष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद में इजराइल के यहूदी धर्म से आइजैक मालेकर जी है। आइजैक मालेकर जी ने भगवान महावीर के उपदेशों पर, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान महावीर का जो संदेश है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तो ये सारी जो बातें हैं, जो सिद्धांत है उनकी, आपका आचरण कैसा शुद्ध होना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने कहा कि हमारे यहूदी धर्म भी जो हमारी 10 आज्ञाएं हैं, उसमें जो कहा गया है कि किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी की झूठी साक्ष्य नहीं देना, और डू नॉट कॉवेट, कि जो आपका अपरिग्रह है। तो सारी भावनाएं यहूदी धर्म में भी है। जैसे आपका क्षमा पर्व होता है, यहूदियों का योम किप्पुर है, उस दिन हम उपवास करते हैं। उसके अलावा यहूदी धर्म में प्रार्थना होती है, उसे एक प्रार्थना होती है, उसमें मौन धारण करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर जी ने 12 साल तक तप किया था, उसमें उन्होंने मौन धारण किया था। उसके बाद उन्होंने उपवास की जो महत्वता है, यह हम भगवान महावीर से ही सीख सकते हैं। और आपका आचरण संहिता जो है, आपका आचरण कैसे होना चाहिए, या इसकी अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम भगवान महावीर की तरफ से ही सीख सकते हैं। आज हमारे साथ गेसे दोरजी है, जो बौद्ध धर्म से है। उन्होंने आज सर्वधर्म कॉन्फ्रेंस था, उसमें भगवान महावीर के उपदेशों की क्या उपयोगिता है, उसके बारे में जो बताया, आप जरा बताइए। So basically, today is the commemoration of the Lord Mahavir's the deeds for the world, and the teaching on ahimsa, which is extremely relevant today, because we see that so much of world wars happening everywhere in the world, and also so much of tensions, border tensions, domestic violence, all this has happened. From this we can see that the Lord Mahavir's teaching, which is extremely relevant today, and it must spread. So in fact, the Lord Mahavir and Buddha Shakyamuni, two of them were like contemporaries, and it's so important that the messages must go to the world through the understanding of interdependency of oneself and others.